Today we will do standard 10th maths 2 practice to 1.2. In this figure, PQR is a triangle, PM is a bisector. We have to identify whether it is a bisector or not. Okay, so how to identify this? अगर जिससे एंगल बना है, एंगल किससे बना है? ये QPR एंगल बना है PQ और PR से, ठीक है। तो मैं बोलूंगा भाई PQ अपॉन PR. What is PQ upon PR? It is 7 upon 3. Okay, it is 7 upon 3. This is first. I will give number first. एंगल इससे बना. अब किसको काटा है? ये बाइसेक्टर है क्या नहीं अपने को प्रूफ करना है. ये किसको काट रहा है? ये रे इंटरसेक्ट कर रहा है QM और MR को. तो यहाँ पहले 7 लिया था इसलिए QM लेगा. QM is what? MR. Okay, QM upon MR. This is 3.5 and this is 1.5. If I multiply this by 2, numerator and denominator by 2, I get 7 upon 3. This is second. That means both are equal. The ratio of both are equal. दोनों equal हो गया. From first and second. From first and second. If these two are equal, then I can say ray PM is bisector of angle QPR. Okay, it is a bisector. Now the second sum. In triangle PQR, एंगल किससे बन रहा है? देखो यहाँ पे वापिस PQ and PR. सपोज आई टुक PQ here. PQ अपॉन PR कितना है? 10 upon 7. This is first. Now the second one is, किसको काट रहा है ये रे? पहले PQ लिया था तो यहाँ पे MQ लेंगे या QM भी ले सकते हैं. QM upon RM. QM upon RM. QM is 8, RM is 6. अगर इसको काटेंगे भी, रिड्यूस फ्रैक्शन में भी करेंगे तो दे आर नॉट इक्वल. आर दे इक्वल? दे आर नॉट इक्वल. तो देन आई कैन से PQ अपॉन PR, जिससे एंगल बना वो और जिसको काटा ये रे, is not equal. They are not equal. If they are not equal, how I got this? From first and second. From first and, if they are not equal, I can say, what I can say? Ray PM does not bisect angle QPR. Okay, it does not bisect angle QPR. Now the second sum. In triangle PQR, this is triangle PQR. PM is 15. This is 15. PQ is 25. This is 25. Okay. NR is 8. NR is 8. Okay. Now what I have to find? That NM is parallel to RQ. NM is parallel to RQ. And PR is also given. This is also given. This is 20. Okay, now let's see how I will find this.
PQ is nothing but PQ is what? PN plus NR. PN plus NR. PQ is what? PM plus MQ. PQ is what? PM plus MQ. ओके अच्छा, अब यहां पे PQ कितना दिया है? 25. PM कितना है? 15. MQ नहीं पता. MQ तो 25 माइनस 15 इज इक्वल टू MQ. ये आ गया 10. MQ क्या मिला मुझे? 10. I got MQ 10. ओके 10. देन वैसे ही PR का करो. PR क्या होता है? PN प्लस NR. PN प्लस NR. ओके तो PR is given 20, PN I don't know, and NR is given 8. So what this will become? 20 minus 8 equal to PN. Therefore PN is what? 20 minus 8 is what? 12. PN is 12. अब I can easily get. अब देखो now what I will do, I will take PM upon MQ, the ratio PM upon MQ. What is PM? PM is 15 and MQ is, I got MQ now, 10. Now reduce this ratio. When I reduce this ratio, 5 2s are 10, 5 3s are 15. I got 3 upon 2. What I got? 3 upon 2. This is first equation. First. Now I took MP upon MQ. Now I will take NP upon NR. NP upon NR लेंगे. ठीक है, इसका रेशियो देखेंगे क्या आता है. NP कितना मिला है मुझे? 12 और NR कितना है? 8. ये दोनों 4 का टेबल से कटता है. 4 2s are 4 3s are. Again I got 3 upon 2. That means these two are equal. These two are ratios of these two are equal. अगर इसका रेशियो इक्वल होता है, इसको बोलेंगे फ्रॉम रेशियो इक्वल हुआ ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. अब ये जब रेशियो इक्वल हो गया तो व्हाट आई विल टेल, आई कैन से इफ द रेशियोज आर इक्वल आई कैन से सेगमेंट. देयरफॉर सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, कौन सा ये? NM इज पैरेलल टू QR. साइड QR किससे? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, कन्वर्स ऑफ BPT लिखता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, BPT. ओके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. नाउ द थर्ड वन इज, in triangle MNP, NQ is a bisector of N, and MN is 5, PN is 7, MQ is 2.5, QP we have to find. Now it is given that it is a bisector. Okay, so first I will say in triangle MNP, in triangle NMP, NQ is bisector of angle N. ये given है, this is given. Okay, if this is given, किससे एंगल बना है यहाँ पे? MN और MN. देखो ये MN है और ये PN है, ये दोनों से एंगल बना है. तो मैं बोलूंगा भाई MN अपॉन PN, ये दोनों से एंगल बना. किसको काट रहा है? MN पहले लिखा तो यहाँ पे क्या लिखेगा? QM.
या एम क्यू भी लिख सकते हैं, एम क्यू अपॉन पी क्यू, एम क्यू अपॉन क्यू पी क्यू चलेगा, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए बिकॉज दिस इज अ बाइसेक्टर। क्या लिखेंगे आप, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अब ये कितना दिया है भाई 5, पी एन कितना है 7, एम क्यू कितना है 2.5, क्यू पी नहीं मालूम। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू क्यू पी 2.5 इंटू 7। ओके, अब ये क्यू पी इधर ही रहेगा, दिस इज मल्टीप्लाइंग ईयर, दिस विल डिवाइड। ओके, अभी देखो 2.5 1 जा 2.5 2 जा, है ना, 2.5 1 जा 2.5, ये डबल है तो उसको काट दिया मैंने। अब 2 को 7 से काटना है तो 2 1 जा, इसका हाफ क्या होता है 7 का, 3.5, 3.5। ओके, तो क्या आ गया मेरा, क्यूपी क्या मिला मुझे 3.5 यूनिट्स, 3.5 यूनिट्स। ओके, now the fourth one, is what, measure of some angles are given in the figure. You can see the measure is given here, angle APQ which is 60 degree and ABC is also 60 degree, means they are congruent. They are congruent. If these two angles are congruent, that means these lines are parallel. These lines are parallel. क्यों? क्योंकि corresponding angles है। ये क्या है, corresponding angle है, तो अपन क्या बोलेंगे, corresponding angle के हिसाब से वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। मैं बोलूंगा सेगमेंट, ये गिवन था, इसको गिवन लिखो, सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बी सी। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ओके, इसको बोलो फर्स्ट, क्या बोलेंगे, फर्स्ट। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर ये पैरेलल है तो अपन क्या बोलेंगे कि इफ दिस इज पैरेलल, तो इन ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट PQ is parallel to side BC. Okay, if this is parallel, तो अपन इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम लगा सकते हैं। We can apply the basic proportionality theorem. क्या बोलता है, AP अपॉन PB is equal to AQ अपॉन QC। अगर ये पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलता है ये वाला हिस्सा अपॉन ये वाला इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। पैरेलल रहेगा तो इसको लिखो, रीजन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। You have to write in full form, okay? Now the fifth one. Fifth one is in a trapezium. Just wait. In a trapezium, side AB is parallel to PQ, है ना, एंड साइड DC। ये तीनों चीज एक दूसरे को, अगर ये तीन पैरेलल लाइन है तो मैं क्या बोलूंगा भाई, सेगमेंट, ये सॉल्यूशन है यहां से, सेगमेंट AB इज पैरेलल टू व्हाट, सेगमेंट PQ
and that is parallel to segment DC. All the three lines are parallel, all the three segments are parallel. This is given. Okay, अगर ये given है तो अपन बोलेंगे by property of three parallel lines, three parallel lines and their transversal बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस भी बोलेंगे, इंटरसेप्ट ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हो. ओके, तो क्या होगा यहाँ पे देखो किस चीज में डिवाइड कर रहा है ये पैरेलल लाइन, AP अपॉन PD. लिखो यहाँ पे AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC. ओके, AP कितना है देखो यहाँ पे दिया है 15, PD कितना है 12, BQ मालूम नहीं और QC 14. ओके, अब कुछ कटता है तो काटना है. लेट्स सी, BQ इधर ही रहेगा 15 अपॉन 12, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू BQ है ना, यहाँ डिवाइड था या मल्टीप्लाई किया इक्वल टू BQ. अभी इसको कैंसिल करेंगे, देखो ये यहाँ डिवाइड था या मल्टीप्लाई हो गया. अब इसको कैंसिल कैसे करेंगे बताओ. 2 का टेबल में जाएगा, 2 6 जा 2 7 जा. ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं होता आगे, अब इसको कैंसिल करेंगे. 3 2 जा 3 5 जा. तो मेरे को BQ क्या मिला अब देखो, देयरफॉर BQ इक्वल टू 5 7 जा 35 अपॉन 2. 35 अपॉन 2 मीन्स व्हाट, 35 का हाफ क्या होता है 17.5 यूनिट्स. 17.5 यूनिट्स. देयरफॉर BQ क्या मिला मुझे 17.5 यूनिट्स. ठीक है, नाउ द नाइन्थ सम देखो, इसके अंदर क्या दिया है, ट्राइंगल ABC दिया है. थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, हाँ दिखने, हाँ ओके. ABC दिया है, ABC के अंदर ये इसका AB का मेजर दिया है यहाँ पे x, BC का मेजर दिया है x.5 x+5 और ये दोनों का भी दिया है. ठीक है, अब मुझे सोल्यूशन इसके लिए देखो, ये है क्या बोल रहा है कि बाइसेक्टर है. इफ इट इज अ बाइसेक्टर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर आई कैन से AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC. जिससे एंगल बना वो AB अपॉन BC, जिसको काटा वो AD अपॉन DC. ठीक है, चलो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ, है ना. पहले अपन लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा है ABC. इन ट्राइंगल ABC क्या है, रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, है ना, बाइसेक्ट्स एंगल ABC. तो किससे एंगल बना यहाँ पे AB अपॉन, मैं बताया था अभी BC. AB अपॉन BC क्या होता है AD अपॉन DC बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. चलो, AB कितना है x, BC है x+5, ये है x-2 और ये है x+2. अब नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई बाय x+2. ठीक है, इक्वल टू x-2 मल्टीप्लाई बाय x+5. देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया. x इंटू एक्स x²
प्लस एक्स इंटू 2x, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे x को पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, देन -2 को भी पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ हो गया x स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x, -2 इंटू एक्स -2x, 2 5 10 -10। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर कैंसल्ड हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसल्ड हो जाएगा। अब क्या होगा, 2x यहाँ बचा, 5x में से 2x गया, 3x बचा, ये -10 है। अब क्या करेंगे, 10 को इधर ले लो, ये पॉजिटिव हो गया, 2x को इधर ले लो, ये नेगेटिव हो गया। अब माइनस किया तो x बचा 10, x बचा 10। ओके, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, 10। ओके, नाउ द लास्ट सम, just concentrate on the last sum. In an adjoining figure, x is any point in the interior, x यहाँ पे है, point x join the vertex of the triangle, ये सबके vertex को triangle को join किया है। मुझे बताना है, it is given that PQ, ये PQ is parallel to this, then DE is parallel to PQ. okay, QR is parallel to EF, ये QR EF को पैरेलल है, PR BF को पैरेलल है। ठीक है, PR DF को पैरेलल, PR DF को पैरेलल। ओके, चलो यहाँ पे ये एक्टिविटी है, इन ट्राइंगल x, देखो आप बराबर से देखना, DE XDE, ये एंगल छुपा दो, ये ट्राइंगल छुपा दो, ये ट्राइंगल छुपा दो, ये जो दिख रहा है ये ट्राइंगल XDE, ये वाला ट्राइंगल। इसके अंदर अगर मैं देखूं, इफ दिस इज पैरेलल, जो छोटा वाला PQ इज पैरेलल टू DE, इफ दिस इज पैरेलल, तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई, XP अपॉन PD, XP अपॉन PD। यहां पे क्या बोल सकते हैं, XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, XEF, यहां पे ये पैरेलल है, QR पैरेलल है इसको, तो क्या बोल सकता हूं मैं, XQ अपॉन QE, है ना, ये ट्राइंगल लिया ये वाला, तो XQ अपॉन QE, XR अपॉन RF, XR अपॉन RF क्यों बोल सकता हूं, अगेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ अगेन या दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। यहाँ पे देखो ये साइड वाला XQ है, यहाँ पे भी XQ है, QE है, QE है, दिस साइड मैच कर रहा है, तो ये भी मैच होना चाहिए, ये भी इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ XP अपॉन PD, this XP upon PD will be equal to XR upon RF, ये इसको इक्वल हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इफ दिस इज इक्वल, देन सेगमेंट PR is parallel to DF. Why? By converse of basic proportionality theorem. I think it's enough. Thank you.